Hello, am I audible? Yeah, Yes, sir. Okay, so I am Yajas Modi this side from Keyword Solutions. Uh, I am Assistant Marketing Manager at Keyword Solutions. I look upon all the trainings which conducted under Solar. So we have various trainings like so we have related solar and we have trainings related electric vehicles also. So today we all have gathered here for a webinar uh, on electric vehicle, which would be given by Japin sir. Uh, so thank you all for joining this session, and thank you Japin sir for conducting such a wonderful session. So I just leave up to you. You can start the session. thank you, Yajasji. Thank you very much. Thank you very much, Yajasji and Keyboard, for providing me this platform where I can showcase and we can meet enthusiasts So of. your voice is very low. Can you speak little louder? Okay, my voice is not appropriate. Uh, Hold on a second, please. Am I audible now? Is it better? Yes. Hello. Is it better? Yes. Okay. So as I was saying, thank you very much for the platform and opportunity, Keyboard. I appreciate this opportunity. Moving on towards the agenda of today's webinar, that we basically are going to try to understand what we are going to look and what we are going to understand in the actual electric vehicle. Am I not audible yet? Am I not audible to every one of you, or there is a problem with one or two participants? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर एक या दो लोगों को नहीं आ रही है? Can anyone help me please? आवाज आ रही है बट स्लो है। स्लो है। हाउ अबाउट दिस? अब मेरी आवाज हाउ अबाउट दिस गाइस? अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, आप थोड़ा लाउडर है। अच्छा, Yes. पहले से ज्यादा अच्छा है। हाँ, ओके ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम आज ये देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेक्शन सेशन, इंटरेक्टिव सेशन, जहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द एक्चुअल ईवी ट्रेनिंग सेशंस दैट वी हैव scheduled for 3 days on 3rd and 4th of September and on 11th of September. So 3rd, 4th, Saturday, Sunday, and 11th Sunday, September, that we are uh, putting up this entire training sessions. The entire training session is 4 hours per day, 2 hours in the first half and 2 hours in the second half. 2 घंटे हम फर्स्ट हाफ में करेंगे, 2 घंटे हम सेकेंड हाफ में करेंगे. सो ऑल एंड ऑल ये पूरा 12 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रहेगा. सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में ये जज्जी, ये आई एम श्योर वो आपको शायद थोड़ा बहुत समझाएंगे, या फिर जब भी आपने इंक्वायरी की होगी उन्होंने आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन दी होगी पहले भी. So the major point what we are trying to understand here is what are the topics that we guys are going to understand and what is the future that we are looking at. ये ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, या फिर पूरा सेगमेंट कहाँ पे जा रहा है, हम वो छोटी मोटी चीज़ें 5-10-15 मिनट में हम समझेंगे. एंड देन आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस कि हम इसको आपके कोई अगर डाउट्स होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस थिंग्स एज वेल. So let me give you a very brief idea and very brief presentation about the training session. So this is a 3-day online course, Electric Vehicles Development, Design and Policy. Now, आप लोगों को पता होगा कि भाई पहले मतलब आज से मैं बात कर लूँ 15-20 साल पहले एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक
पूरा नया एरा शुरू हुआ, पूरा एक नया दायका शुरू हुआ था जब रिन्यूएबल एनर्जी, particularly in solar and wind, there were things which were very new to people. There were things which government was also not quite aware of, or probably was not too much ready about, and how to implement those things, what to do. लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने 2000 के दायके में, 2001 2002 के दायके में इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया. 2005 6 7 आते आते चीज़ें धीरे धीरे पिकअप होना शुरू हुआ, एंड ग्रेजुअली सोलर system or wind energy system in India have become a very big segment these days. आजकल काफ़ी सारे ऐसे states हैं जहाँ पे सोलर घर घर पे लगा हुआ है, बहुत कॉमन सी चीज़ होती जा रही है. शायद उससे भी ज़्यादा कॉमन सी चीज़ जो हम अगले 10 साल के अंदर देखेंगे, that thing is going to be okay. Meanwhile, let me tell you that I'm going to conduct the entire session in combination of Hindi and English. So if you guys are not comfortable with any of the languages, please let me know. मैं try करूँगा कि उसको हो सके उतना ज़्यादा common language के अंदर हम share कर पाए एक दूसरे के साथ. राइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भाई अगले 10 साल के अंदर हम शायद सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो हम देखेंगे, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, शायद 10 साल में नहीं, शायद 15 साल में नहीं, लेकिन अगले 20-25 साल के अंदर अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक इतनी बड़ी सेगमेंट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है कि वो हर एक छोटे से छोटे इंसान को, एक कॉमन इंसान को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है. क्योंकि आज we probably have a diesel vehicle, we probably have a petrol vehicle, we do have a two-wheeler or a four-wheeler, and as that those four-wheeler or two-wheelers are part of our family, these electric vehicles are also going to be the part of our family. We are going to shift completely towards a new technology, new era. Government is also doing too much about putting up this momentum into the action. Lekin to be honest with you, electric vehicles are not any new concept. हो सकता है कि शायद हम पिछले 4-5 साल से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सुनते आ रहे हैं, but this concept, this idea, this technology has been with us for nearly 2 decades. 2 centuries, my mistake. Nearly 2 centuries. 200, तकरीबन 200 साल होने को है कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ वाकिफ है. कहीं ना कहीं अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती तो हम इसको डेफिनेटली कोई अलग लेवल पे देखते. जितना डेवलप्ड हम आज पेट्रोलियम मार्केट को देख रहे हैं, उतना ही शायद डेवलप्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट होता. व्हाट एवर द रीजंस वर, वो नहीं हो पाया. 200 साल लेट ही सही, लेकिन अब जो भी पूरा सेगमेंट होने वाला है, जो भी पूरा इकोनॉमी होने वाला है, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने वाला है. एंड दैट इज फॉर श्योर. रातों रात नहीं होगा. दैट इज ऑल्सो अंडरस्टेबल कि भाई अचानक से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर एक के घर में नहीं होंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ अनदर 3-4 decades ये डेफिनेटली घर घर की कहानी होने वाली है. So electric vehicles, as I was saying, has been with us for nearly 2 centuries. Netherlands, Hungary, USA, France, and for that matter, India has also played a major role in development of electric vehicle in past couple of centuries. Slowly and gradually, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे हुआ करते थे जो सिंगल चार्ज बैटरी के ऊपर ही वर्क किया करते थे. इनिशियल प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोटोटाइप प्रोबेबली जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी के ऊपर वर्क किया करता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द टेक्नोलॉजी बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन स्टोरेज, इन बैटरी की टेक्नोलॉजी जितनी प्रोमिनेंट होती गई, वैसे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी चेंजेस आने लगे. एंड
electric vehicles also started to have rechargeable batteries, जो हम बार बार इसको चार्ज करके यूज किया करते हैं। आज की तारीख में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी सारा दारोमदार बैटरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। The type of battery, the technology of the battery is going to determine what type of system that we might see in future. हो सकता है कि अगले 15-20 साल के बाद बैटरी के बदले हम सुपर कैपेसिटर्स का उपयोग देखें। शायद सुपर कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करते होंगे, सुपर कंडक्टर्स का कोई रोल हो सकता है उसके अंदर। सो देयर आर डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दैट माइट कम, और बैटरी के बदले दूसरी कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम उसके साथ भी हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंबाइन होते हुए देख सकते हैं। देयर आर चांसेस। सो as I said, it has been with us for more than or nearly 2 decades. So, yeah, sure, ma'am. I'm going to take your questions if you don't mind. मैं आपका definitely आप कहीं पे questions लिख के रखिए। मैं जैसे ही मेरा ये session खत्म होता है मैं आपका question yes sir आंसर करूँगा। So future, as I said, is looking very bright, especially in two-wheeler market, क्योंकि जनरली आज की तारीख में भी अगर देखा जाए ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ज़्यादातर टारगेट होता है वो होता है शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जनरली शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्टेशंस के लिए पीपल प्रिफर टू व्हीलर्स फॉर नियरली समवेयर अराउंड लेट्स से 20-30 किलोमीटर्स का एरिया जहाँ पे हमें जल्दी से आना जाना रहता है, तो वी प्रिफर टू व्हीलर मार्केट, टू व्हीलर एज ए ट्रांसपोर्टेशन। एंड सो probably before a boom in four-wheeler EVs, we might see a very big opportunity in two-wheeler EVs जो ज़्यादा जल्दी से penetrate होगा market के अंदर। Government is expecting the entire economy of EV to be somewhere around 450 billions by 2025. आज की तारीख में 1-2-5% अगर EV मार्केट में अवेलेबल है तो वो that is expected to be somewhere around 15 by 2025. And I'm sure you guys might be aware that government of India has put up a a big monumental target of 100% EV by 2030, which probably is too much probably वो शायद नहीं हो सकता 2030 के तक, क्योंकि अभी हमारे पास 8 साल है और शायद 8 साल में 100% EV होना डिफिकल्ट लगता है। बट if you target for 100%, probably you might achieve 40-50%. So it's kind of a very good target, very ambitious target, जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे क्रिएट करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। There are many players who are coming up with the manufacturing facilities. There are many players who are coming up with the service industry. There are few players who are also coming up with the क्या कहते हैं हम ये outlets for the entire selling of the two-wheeler and four-wheelers, and even there is three-wheeler in EV. So many government benefits are available for EV as of now. Subsidies available होती है, पहले 30,000 तक का प्रपोज किया था, जो कि आज तकरीबन 20-25,000 तक टू व्हीलर में मिलती है और 1.5 लाख रुपए तक का फोर व्हीलर में सब्सिडी मिलती है। So it has been a very ambitious targets, and people are already working on to it. प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही अग्रेसिव है जितना गवर्नमेंट सेक्टर ईवी को लेके है। सो देयर आर गुड अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड अराउंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ईवी में सिर्फ अच्छा ही है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ईवी। आई वुड नॉट से ड्रॉबैक्स, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे अगले 5-7-10 साल में। एंड आई एम श्योर के पीपल, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट विल कम अप विद सम बेटर सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशंस टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। जैसे फ्यू ऑफ द चैलेंजेस आर कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अवेलेबल नहीं है,
मान लो मुझे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर अगर मेरी कार लेके मुझे कहीं पे जाना है, तो शायद मैं उतना इजीली ईवी कार लेके नहीं जा पाऊंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज अंडरस्टेबल। लेकिन उसका मैं आर्गुमेंट ये भी करूंगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात खड़ा नहीं होता, देयर आर सर्टन थिंग्स विच टेक टाइम, और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता जाएगा चार्जिंग स्टेशंस वगैरह को लेके, उतनी ही एडेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़ती जाएगी। सो देयर आर चांसेस कि भाई हाँ, ये अभी अवेलेबल उतना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा डिफिकल्टी हम फेस करते हैं, या रेंज को लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज शायद 400-500 kilometers. There are certain cars which claim to have 1000 kilometer of a range in a single charge, लेकिन वो अभी obviously क्या कहते हैं, एक ट्रायल मोड पे है, रिसर्च फेज में है। प्रैक्टिकलिटी में शायद 200, 250, 300, 400 किलोमीटर तक की रेंज हमें मिल जाती है। तो there are certain challenges with the this range and the transport duration. And the biggest challenge is EV vehicles are probably 20-25% more expensive than petrol and diesel vehicles. जैसे भाई 2007-8 में सोलर बहुत महंगा हुआ करता था, वैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे हैं। लेकिन एक टाइम पे स्कूटर भी तो बहुत, पेट्रोल का स्कूटर भी तो बहुत महंगा हुआ करता था। जैसे जैसे उसकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो मार्केट बढ़ता गया एंड प्राइस हैव कम डाउन। So we are also expecting the electric vehicle market to come down very soon as well. So in a nutshell, थोड़ी सी challenges हैं, लेकिन बहुत बड़ा bright future है। So we are expecting that bright future. We are expecting to be a part of that bright future very soon, actually. The entire section, as I already said, कि भाई 12 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हैं। आई एम श्योर आपके पास ये शेड्यूल्स वगैरह आ गए होंगे। हम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखेंगे कि भाई वो कैसे, कौन सी स्टेजेस में से पास होता है, उसके की कंपोनेंट्स को देखेंगे, विच आर द की कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में। मेजरली हम बैटरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और how electric vehicle batteries work, how they are manufactured, what are the maintenance things that we need to look into, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके साथ जुड़ा हुआ जो टैबू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, जो एक टैबू है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी आई थी आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले, आपने भी शायद देखी होगी कि भाई कहीं कोई एक व्हीकल ब्लास्ट हो गया या कुछ जल गया, ये वो छोटा मोटा, वो टैबू को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो हम थोड़ा छोटा मोटा देखेंगे। पॉलिसीज, गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प कर रही है, उसके ऊपर कौन से चीज़ों के ऊपर वर्क हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू एज वेल। सो दिस इज द gist or the brief idea about the course agenda. This is the certification that you guys are going to receive, that is from Skill Council for Green Jobs, and I'm sure कि KWatt और Skill Council for Green Jobs से शायद आप सब काफ़ी हद तक वाकिफ़ है। So I don't really need to give any introduction about the KWatt or Skill Council for Green Jobs. And that is a brief idea about my profile, which I'm sure Yajas ji must have shared with you guys already. So I'm not going to talk much. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। I'm going to leave the entire session open for the discussion and question answers as you guys would like. Amiya ji, I would like to welcome you for the very first question, as you had raised some queries or something, I guess. Yes, sir. So actually, I had to ask you about what are superconductors? Superconductors or capacitors? See, the superconductors are the conductors which conduct electricity with nearly zero resistance at a given point of time or given temperature. So एक सुपर कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली एक तरीके से
सूडो जीरो रेजिस्टेंस होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल हीट या इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत कम लॉसेस की वजह से पास हो सकती है, दैट इज सुपर कंडक्टर। बट मैं सुपर कैपेसिटर्स की भी बात कर रहा था, अगर आप जो कंफ्यूज है तो मैं सुपर कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा था, जो कि शायद बैटरी के बदले हम यूटिलाइज करेंगे आगे जाके। हाँ सर, मुझे दोनों में डाउट था। Super capacitors are basically better constructed capacitors. कैपेसिटर अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंफॉर्मेशन अगर है, आपका बैकग्राउंड अगर ऐसा है जिसमें दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की थिकनेस बहुत कम कर दी जाती है और इलेक्ट्रो जो प्लेट्स होती है उनकी भी थिकनेस कम होती है, जो ये गैप कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है एंड दैट इज व्हाई कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ सुपर कैपेसिटेंस। सर थैंक यू सर। सर और सुपर कंडक्टर में हम सिल्वर को सुपर कंडक्टर है ऐसा बोल सकते हैं क्या? At given point of temperature, yes, it would work as a better, it is a better conductor. I would definitely not say it's a superconductor, क्योंकि superconductors are mostly alloys and they work very very well at lower temperature actually. Yes sir, thank you sir. Right guys, I welcome any more questions, anything regarding, what do you say, engineering point of view or the course. I would be happy to answer those things. Yejas ji has already put up some message for you guys and probably he's asking for your WhatsApp number, so please share your WhatsApp number so that we can share the course details and certain what do you say, brief idea about the course that we are gathered here for. मैं एक बात डेफिनेटली बोलूँगा, आप अभी क्वेश्चंस नहीं हो रही है, जस्ट इन केस आई होप कि मैं आप सबको कोर्स में देखूं और मैं ये चाहूँगा कि मेरी जनरली ऑनलाइन सेशंस के अंदर में ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा एम्फसाइज करता हूँ, प्रेशर करता हूँ कि वो अपने वीडियोस ऑन रखे ताकि आपको और मुझे दोनों को थोड़ा ये फील हो कि हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा वीडियो बंद है तो आपको लगेगा कि भाई कंप्यूटर बोल रहा है, और अगर आपका वीडियो बंद है तो मुझे लगेगा कि मैं कंप्यूटर के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि व्हेन वी आर नॉट डूइंग फिजिकल वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन, वो जो एक फिजिकल टच नहीं है ट्रेनिंग का, वो इसमें निकल जाने की वजह से ट्रेनिंग का जो हमारा एक 1-to-1 लेवल पे अटैच होना चाहिए, एज अ ट्रेनर एज अ ट्रेनी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में समझ पाऊं मैं ये समझ पाऊं कि आपको मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आ भी रही है या नहीं, या फिर आप मेरे एक्सप्रेशंस को देखो, आपको मेरी एनर्जी लगे कि भाई मैं एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो शायद आप भी वो एनर्जी के साथ कुछ ट्रेनिंग एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में कंप्यूटर के अंदर मैं बोर हो जाऊं, आप भी बोर हो जाओ, ये बहुत इजीली हो जाता है। सो मेरी जनरली ये प्रैक्टिस होती है कि हम ऑनलाइन सेशंस जब भी करें तो हम वीडियोस को ऑन रखते हैं, जस्ट फॉर यू नो interact to make it more interactive basically, right? Anyway, so guys, any more questions regarding what to expect in the training session, 3rd 4th और 11th का ट्रेनिंग हमारा? Any questions? अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो they can feel free to ask. So basically we are coming up with 3 days online course on EV, on electric vehicle. In that we will cover various aspects from basic to advanced. So we will cover all the charging station, we will cover all the policies,
we will cover all the as sir told. So बहुत अच्छा और What is बहुत the live interactive. बोलिए. fee for the course? Sorry. So What is the fee? Registration fee. Okay, registration fees. Registration fees is 2,499. 2,499. I have a question. sure, please. So when do you think that electric vehicles will boost? Like from which year will it start? Like according to it's 2022 now. Okay, electric vehicles have already starting being a part of many people, but it is very difficult कि भाई हम 50% या 100% कब तक देखेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि 2030 तक मैं तकरीबन कम से कम 50% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल देखूंगा, ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है. कम से Yeah, कम. exactly. Yeah, I know that by 2020, by 2030, like the electric vehicles will boost. Like half the world will be electric. I have sure about it. But I'm saying in now in in next when will it take that space? What do you see electric vehicles in 2025 or 2026? What do you think in that phase? मतलब वो किधर रहेगा? आपको क्या लगता है? मतलब will it boost up a lot? Of Will it course. be more comfortable for people and will it be cheap or अभी something like से that? अभी से 5 साल बाद में हाँ मतलब 2025 या 26. सी yes. एवरी ईयर कितना ग्रोथ होगा ये कहना शायद मुश्किल है. इनिशियली अभी के टाइम में 1-2-3% का शायद ग्रोथ हम देखेंगे, लेकिन 3-4-5 साल बाद वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा. मतलब कि फॉर एग्जांपल आज के साल 2022 में मान लो कि 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल आउट हुए हैं और 2023 में वो 10 के 12 होंगे, तो 2030-31 का जो अगर आप पीरियड देखोगे वो 10 टाइम्स 20-30 टाइम्स वो फोल्ड होता जाएगा. सो इनिशियली द ग्रोथ विल बी प्रोबेबली स्मॉल, नॉट टू मच, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अभी जो ग्रोथ हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है. चार्जिंग स्टेशंस का ग्रोथ हो रहा है, उनको बैटरीज में स्वैपिंग स्टेशंस का ग्रोथ हो रहा है. Probably by 2025 we will see major number of players coming up with their at least 30% of their product in EV, at least 30%. जैसे Hyundai हो गया या टाटा हो गया या सुजुकी हो गया, उनकी कम से कम 30% प्रोडक्ट ईवी में होगी by 2025, and year on year ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा. by number I'm sorry, I'm not able to share you मैं कोई ऐसा नंबर बोल दूं या कि भाई एक साल में 10 लाख व्हीकल बिकेंगे या 50 लाख व्हीकल बिकेंगे. There is no particular number to give you up at this point of time. Okay, thank you. No, I didn't know any number as I just wanted to know the market like मतलब start कैसा हो रहा है because now I can see the start and like looking at the roads also the roads like Indian roads are very potholes like everywhere. So I don't know this if EV vehicle because this EV vehicles they don't need I heard they don't need servicing also. I don't know how much but I heard that they don't need servicing. So recently one guy he had was 6 months back EV vehicle so it was smooth the voice to not come but now after 6 months, like yesterday, he passed from me and I could hear his bike voice. So I heard that they don't have major servicing and all like how this normal petrol bike and all have. So I don't know how even that will keep up like because they don't have much stations like. I understand, लेकिन all big players they are coming up with their service stations, and even the players who are coming as a new manufacturers. ईवी के अंदर बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ Hyundai या टाटा जैसी बड़ी कंपनी ही इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. बहुत सारे मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं. दे आर सेटिंग अप देयर सर्विस स्टेशंस एंड दे आर सेटिंग अप देयर सेलिंग पॉइंट्स एज वेल. तो हर एक जगह पे जैसे अभी हम एक सर्विस स्टेशंस को सिचुएशन देखते हैं जो तकरीबन शायद हर एक 5 या 10 किलोमीटर के बीच में हमें एक सर्विस स्टेशन देखने को मिल जाता है विद इन दी पॉपुलेटेड एरिया. वैसे ही ईवी के भी बहुत सारे सर्विस स्टेशंस होंगे एंड फॉर श्योर जितने भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं उनको ये
बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. सो सर्विस स्टेशंस एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम विदिन कपल ऑफ ईयर्स, विदिन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो जैसे कि आप अभी आपके फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव की बात कर रहे थे कि भाई जो 6 महीने पहले शायद आवाज नहीं कर रही थी उनकी व्हीकल या बाइक, अभी आवाज कर रही है. आई एम श्योर कि वो 6-8 महीने के अंदर जब भी वो सर्विस करवाएंगे, वो जो भी उनकी मैकेनिकल इनर्शिया हुआ है, उनको मैकेनिकल लॉसेस जो भी हो रहे होंगे, वो कम किए जा सकते हैं बेसिकली. एंड वो जो भी उन्होंने अभी जहां से भी व्हीकल परचेज किया है, आई एम श्योर कि उनका भी एक सर्विस स्टेशन होगा ही होगा. Yes. Okay, thank you. Any more questions? Anyone? Well, I'll be happy to answer the questions अगर कोई और है तो, वरना hope to see you all on 3rd of September. हेलो सर, जी सर सिद्धांत. जी तो सिद्धार्थ सर जी. ये वाला जो 3 डे कोर्स है हमारा ऑनलाइन कोर्स ईवी पे, उसपे हम लोग को लर्निंग आउटकम क्या मिलेगी सर? एज इन व्हाट कैन बी अप्लाइड इन द रियल जॉब मार्केट सिनेरियो? इस कोर्स की एप्लीकेबिलिटी कितनी है अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में? देखिए, पूरा कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और एक्चुअल स्किल्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है. स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और केवॉट जैसी इंस्टीट्यूट्स जो भी ट्रेनिंग्स देती है, वो ट्रेनिंग स्किलेबल ट्रेनिंग्स है. ये हमारी जो कॉलेज वगैरह के अंदर जो हम बुक में जिस चीज़ों को पढ़ते हैं और शायद उसको इम्प्लीमेंट करते भी है या नहीं पता नहीं, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं है. पूरा कोर्स 12 घंटे इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बन रहा है तो उसको कैसे बनाया जाता है, एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है, उनकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, उनकी खुद की पॉलिसी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक्चुअल सेगमेंट सिनेरियो को देख के बनाया गया है. So it is 110% applicable to all the market that you guys are going to probably work in. हो सकता है कि जैसे आपको मान लो कि हमारा एक सेगमेंट है 1 घंटे का जो असेंबली ऑफ व्हीकल्स का अगर मतलब कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में है, और आप कहीं पे मान लीजिए जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, सो आई एम श्योर कि आपको जो भी कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी. और आप मान लो कि आपको कोई भी कंपोनेंट्स के बारे में, बैटरी या मोटर या कंट्रोलर के बारे में पूछा गया है, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दोस थिंग्स. You'll be definitely able to answer those things. सिद्धांत जी, आपकी वॉइस म्यूट है. सॉरी सर, इस कोर्स में would there be any software or simulation software where we can run the various components of electric vehicle? We could understand how exactly electric vehicle works. And uske yeah, you will be shown with a couple of videos and everything, definitely, but as far as the softwares of designing are concerned, those things are not going to be covered in this particular segment. ओके सर. तो सर इसके बाद फिर कोई एडवांस कोर्स होगा जो वो सब भी कवर करेगा ऐसे? बिल्कुल, इसके ऊपर हम डिजाइन के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कोर्सेज को लेके आ रहे हैं विद इन मोस्टली 1 month और समथिंग. ओके ओके सर, थैंक यू. तो ये हम लोग का बेसिकली 3 days का एजेंडा है. आई होप आप सबको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा. हेलो जी बोलिए ना जल्दी. आप बोलिए ये ना. मेरे को और एक पूछना था, दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इसका मतलब हाउ डज इट फंक्शन, लाइक इफ इट्स ऑन, आई मीन टू से इफ इट्स ऑन, लाइक अगर ये हम लोग चला रहे बाइक, सो हाउ ये विदाउट कीज आल्सो इट कैन गेट ऑफ, राइट? द बाइक इट विल जस्ट स्टॉप वर्किंग, इज इट लाइक दैट? नहीं, मतलब सी, हम इसको
ऐसा ऐसा नहीं है कि बिना की के वो चालू हो गया और बिना की के वो बंद हो गया, ऐसा कोई। यस ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन मैकेनिज्म्स जो हम आजकल पेट्रोल व्हीकल्स में भी देखते हैं, जहां पे बिना की इंजेक्शन को अटैच किए बिना हम सिस्टम को चालू कर सकते हैं। देयर आर सर्टन मैकेनिज्म्स जो कि मैं अभी ज्यादा डिटेल में टू बी ऑनेस्ट नहीं जा पाऊंगा। आपका ये सवाल में आई वुड प्रिफर कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो नो प्रॉब्लम, आप यजस जी को या मुझे ये क्वेश्चन आप फॉरवर्ड कीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई दिस थिंग्स ऑन ईमेल, क्योंकि ये एक छोटी मोटी चीज में बता देने वाली बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट। Okay. धीरज जी ज्वाइन करने के लिए आप यजस जी को कॉल कीजिए और अपना मोबाइल ज्वाइन करने के लिए देर आर पेमेंट लिंक है, सो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड मेरे को आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिए, तो आपको डायरेक्टली मैं कोर्स की डिटेल्स प्लस ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर दूंगा। यू कैन ड्रॉप योर व्हाट्सएप नंबर। Okay. It's 977-980. I guess it's starting from 98, right? It's starting from 8655297409. नहीं नाइजिल जी, आपका नंबर तो है मेरे पास में। धीरज ठाकुर, उनका नंबर। धीरज जी, आप जरा फिर से नंबर लिख के भेजोगे? ओके प्रसाद जी, आपने गूगल फॉर्म फिल किया था? If you have filled the Google form, then I would have your number. Then मैं आपको WhatsApp डायरेक्टली कर पाऊंगा। सेफ साइड के लिए मैं मेरा नंबर भी डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। किसी को कॉल करना हो, डाउट हो रिगार्डिंग प्रोसेस, कोर्स और एनीथिंग, you can directly call me or you can WhatsApp me. It's the same number on WhatsApp also. Okay then, I guess सारे doubts clear हो गए हैं सबके, so we can end this webinar. Right guys, thank you Yajas ji and hope to see you all soon. Thank you. Okay sir, thank you so much sir.